Assalamualaikum everyone. I hope my voice is audible. We will be starting our session in a minute or two, inshallah. Meanwhile, I just want to confirm with you all that is my voice audible? And let's wait for a minute or two so that other participants can join in. And if not, we will definitely be starting our session by 4:40, inshallah. Inshallah. And if my voice is audible, please just leave a comment on the chat box so that we can continue.
Assalamu alaikum, everyone. Am I audible? Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the Independence Day special webinar. I'm so sorry. I was speaking for the last 5 minutes, and I could not unmute myself, and I just realized that I was speaking for a while, and I just could not communicate to you all. So, welcome everyone for the Independence Day special free webinar that is called "Teaching for a Better Planet." Planet and teaching for it is a very very important topic, and is something very close to my heart, being a chemical engineer and being an industry educational transformer. I really wanted to speak about it, and I know this is a topic which might not be an interesting factor for a lot of educators, because this is something, a topic that we feel is not connected to the curriculum. So my intention today for the session is to incorporate the project-based learning and sustainability into our curriculum and into our co-curriculum activities. I would like to quickly ask a question to all of you, that when it comes to sustainability, when it comes to talking about the better planet, what does one thing that comes to your mind? You can write in the comment box and tell me about that. What one thing that comes to your mind? Meanwhile, I would like to quickly introduce myself. This is Mohammad Khazir Suleiman, and I am a founder and lead trainer at Kestrel's World Education System, currently working as assistant manager production at Pakistan Beverage Limited, which is a PepsiCo franchise. Besides that, I have been doing this teachers training since 2020, after the COVID. And I am a lead trainer and founder of this organization called Kestrel's World. Today's topic is about the better planet. And when we talk about the better planet, we talk about communities, we talk about activities that we can bring into the classrooms. I know, when we talk about the sustainability, we think that this is something to be done by the government. This is something to be done by organizations like WWF. This is something to be done by corporate sectors. And we as a school may not have a number of resources that can do the task. So I would like to ask each one of you that when it comes to sustainability, what comes to your mind? Leave just one word into the chat box. What comes to your mind when we talk about sustainability? You may connect it to your school. You may connect it to your personality. That what does comes to your mind? Yes, anybody. Just leave the comment and tell me, what does comes to your mind when we talk about sustainability? Yes, we have Alishba, we have Ariba, we have Mahezahra, and I think a lot of people are from Shah Wilayat and LCS, or I know already. So I would like them to participate a bit. Yes. Who's there? Okay, so I'm getting the chats in the private, and people are speaking about sustainability, water circulation, water reservation, um, paper saving, finding long-term solutions instead of temporary fixes. Okay, Ariba is saying that. Okay, so from the today's journey, we would be exploring what sustainability and what teaching for a better planet is. Number one, we will discuss. We will create something from an AI, obviously. Then we will reflect, and we will try to apply it from Monday, inshallah, in our classrooms. So we will talking about the sustainability in education. We will talking about the real world case studies, and we will discuss what SDGs is, Sustainable Development Goals is, and how we can convert our classroom or our schools into sustainable schools with low resource activities, with cross curriculum links, and with AI and digital tools. So this is how we're going to take this session forward, inshallah. And let's move to the next slide.
And I would like to ask you all, and I would like to give my answer from my take 30 seconds. When you hear sustainability, what is the first thing that comes to your mind? Often we think of trees, planting trees as a something that we have been doing for a long time. We had projects like planting a billion trees, planting a million trees. We as a school sometimes do projects like this, that sometimes we ask students to bring some sort of plants, and then we do the activities like that. What we are doing about water in a school, I would like to know that. What we are doing about the recycling, what we are talking, are we even talking about the climate change? Let's see what we also think about the sustainability. Alishba Azhar is saying that things which give us a long-term benefits. Yes, sustainability is something that gives us a long-term solution. Instead of temporary fixes, we need to work towards something that is far more sustainable, that is far more long-term. For example, um, just like that, we are moving towards the solar system. Instead of relying on the heavy fuels that we have been extracting for the longest times from the earth, we are moving towards the options that can give us energy in a sustainable and a long-term way. So yes, that's the correct answer. But in a longer and a broader term, when we talk about sustainability in a classroom, we are talking about people, we are talking about communities. And when we are talking about communities, we are talking about the problems that we as a Karachiites and we as a Pakistanis and we as a citizen of a global world are facing. Um, and starting from Karachi, we are facing a lot of issues, just like uh, gas pressure issues, electrical issues, water scarcity issues, solid waste management issues, traffic issues, noise pollution issues, and these are the issues that we have been facing on a regular day-to-day basis. And if we are going to resolve it, how can we start from the classrooms? How can we incorporate in the classrooms? How can we make our student being responsible, being civic, being sensible enough to understand these issues, and being critical thinker enough, being a collaborative enough, being a creative enough to understand the problems, and not only understand, reflect on those problems and solve those problems. We will be going to also in. Sarvat has the raise hands. I would like, if she has an answer, if she wants to ask something, and if she wants to unmute herself, I would like to know her perspective, Sarvat. Yes. Ji, good evening, Assalamu sir. I alaikum. want to say something. Assalamu alaikum. How are you? Alhamdulillah, Alhamdulillah. How about you? Happy Acha, Independence Day. uh, actually, my happy Independence Day. This is Hmm. the name of just independence. We are not independent. We are Yeah, it depending is. on each It other. is so unfortunate that a lot of Unfortunately, recent incidents that have been happened has made all of us so heavy-hearted that it's very hard to, heavy celebrate it. hearted. Yes. Okay. Would you like to add We something? all are fear of it. Acha, according to the topic, you were asking about sustainability means. Yeah, So I want to say something about sustainability means please. using resources wisely. They are not wasted, Yeah, like that is protecting the environment, as you told, or creating a classroom while using low resources. ठीक है. Are you Thank getting my voice? Ji, you are very much Reuse audible, and and I have got the recycle, point. I've got the point. I've got the reuse and recycle classroom materials. Like if we assign duties to the student before leaving the class, turn off lights and fans when not needed, reuse paper and other classroom materials like this. Am I right or wrong? Yeah. You are completely right. You are completely right. I would like to add on that also. Thank you so much, Sarvat, for your valuable points. It is. See, sustainability is not just about finding the solutions in an innovative way, but to conserve the resources is also one form of the sustainability. So that we can, let's say, if I have a, for example, a very non-technical example, if I have a 1 liter of the water, if I am going to use 1 liter of water the entire day,
I'm not maybe able to use it. If not using responsibility, I may not be able to use it the other day. So if I preserve it today, maybe if not me, somebody else can take that when needed. So yes, it is very important. And these examples that the server has given, I think are very valuable. That turn off the light, turn off the fans when not in use, reuse the papers. These are the excellent examples that we use as a part of not only the cost saving initiatives but also a sustainable initiative. So sustainability is not just about the cost saving; it's also about preserving things for the longer run, preserving things for the longer run and long term benefits. This is what exactly Alishba and Ariba was also saying. This is what exactly I was saying, and this is exactly what server has also added. So these are an excellent points, and these are also examples of the using what we have in a low resources capacities in our schools, and working towards the sustainability. और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो हम कर रहे होते हैं डे टू डे बेसिस पे, वो हमें रियलाइज नहीं होता शायद, बट वो सस्टेनेबिलिटी ही होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। सो यस, सवाल यही था कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, और अब आज का जवाब हम जो ढूंढेंगे इस वर्कशॉप में, वो ढूंढेंगे कि हाउ कुड सस्टेनेबिलिटी बिकम अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन अ क्लासरूम rather than just a topic, और किस तरीके से हम इसको अपने लर्निंग स्ट्रेटजीज में ला सकते हैं, करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटीज को पार्ट बना सकते हैं अपने क्लासरूम एक्टिविटीज का, अपने स्कूल एक्टिविटीज का, स्टूडेंट स्टूडेंट लर्निंग लर्निंग अप्रोच हम किस तरह अपना सकते हैं। एंड बिफोर डूइंग सो, आई वुड लाइक टू क्विकली गिव यू a 1 minute or 2 minute introduction about the sustainable development goals. If anybody has an idea, I would like to have their input as well. um, uh, Meanwhile, there is this one request. There is this one participant. I may not be able to understand who that person is. So for the certificate verification purpose, I would just like to ask who this person is with the name iPhone number 2. If they can rename themselves, it would be very, very grateful. I would be very, very grateful. Okay, so sustainable development goals are the goals that has been developed by United Nation. अक़वाम मुत्तहिदा ने 192 मुल्की करारदाद के साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये था कि 2030 तक हम अपने इन्वायरमेंट को, प्लैनेट को प्रिजर्व करने के लिए, अर्थ को प्रिजर्व करने के लिए, नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, वाटर को प्रिजर्व करने के लिए हम ऐसे कौन से गोल्स बनाएंगे। जेंडर इंक्लूसिविटी है, और टोटल एक लिस्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो हमारे पास अवेलेबल है यूएन की वेबसाइट पर। और उस पे 192 कंट्रीज ने साइन किया एमओयू, और उन्होंने बोला कि हम अपने अपने पार्ट प्ले करेंगे इस पर। Obviously, the countries who are far more responsible for creating those disasters are being required to do more. And countries who have been affected just like ours, that has been impacted because of other countries environmental issues, just like the global warming, we are the ones, Pakistanis are the ones who have been affected. We are the ones who has been facing earthquakes the most. We are the ones who are facing the floods the most. We are the ones who have been facing the extreme climate change, not only in Karachi but in Pakistan overall. We are the fastest. We are one of the nation that has been facing fastest glacier meltings. So a lot of environmental impact that has been happening because of the world are being impacted in our country, in a country like ours. So these are some of the problems that have been facing we as a country. एंड कराची की प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी, हमने क्लासरूम की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करनी है। और यही प्रॉब्लम्स लेकर हमने अपने क्लासरूम में जाना है, अपने स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, अपने स्टूडेंट को ये सिविक सेंस डेवलप करनी है कि अगर अगर हम कोई चीज प्रिजर्व कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए, जस्ट लाइक द फाइनेंशियल लिटरेसी जो हम देते हैं सेविंग्स की या इन्वेस्टमेंट की, ये बेसिकली सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो अ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स फॉर आवर generations to come. And we as an educator have this sort of responsibility to develop this social sense and civic sense in our students. And how we are going to do that, we are going to learn in this session. So we have a lot of sustainable development goals, but we are going to focus on water. We are going to talk about plastics. We are going to talk about papers.
We are going to talk about electricity. We are going to talk about gas pressures and other things that has been impacting our day-to-day operations. Maybe we are going to talk about the noise pollution as well. That how can we solve and resolve that? So let's take the example. This is the SDG goal number 6, clean water and sanitation. We can ask our students, where does our school's water come from? अगर आज मैं आपसे पूछूं, आज की तारीख में कराची में आप लोग रहते हैं, आपके घर पर पानी कहाँ से आता है, तो मेरा ख्याल होगा कि 90% लोग जो है वो ये जवाब देंगे कि जो पानी आता है, सरवत वुड लाइक टू ऐड समथिंग, राइट? नो नो, आई एम जस्ट गिविंग द रिप्लाई कि पानी कहाँ से आता है। इस वक्त तो आंखों का पानी भी खत्म हो चुका है, कराची अकॉर्डिंग में टू द पानी आता गिवन नहीं है ना? कंडीशन। पानी आता नहीं है जी, कराची पानी में। नहीं आता है बिल्कुल जी। अच्छा सिर्फ पानी। एक धोखा है, जो आप नल खोलो तो अच्छा अच्छा। नहीं कराची आता में पानी। कराची में पानी नहीं आता। हमारे मसले यही हैं, हमारे मसले बेसिक्स हैं। हम कराची में पानी पानी के लिए रो रहे हैं। बेसिकली। पीने का पानी फिर हम भी खरीद सर के। हम सरवाइव कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वी आर द सुपर जनरेशन के स्टिल वी आर सर्वाइविंग विदाउट गैस, दैट्स व्हाट विदाउट कराची आइट्स इलेक्ट्रिसिटी, आर ना। विदाउट वाटर। दैट्स व्हाट कराची जी आइट्स आर ना। वी हैव अ सुपर पावर ऑफ देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। वी हैव बीन मैनेजिंग अ लॉट ऑफ स्टफ। पानी आना बंद हो गया, हमने टैंकर्स लगा लिए हैं। पीने का पानी जी बंद हो सर। गया, हमने आरओ प्लांट के पानी लगाना शुरू कर दिए हैं। हमारे घरों में पानी आता है आरओ का। ठीक है, अगर अगर हमें जो है जी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हुई है, हमने यूपीएस लगा लिए हैं, जनरेटर्स लगवा लिए हैं, हमने हमने कोई ऑब्वियसली। बैटरी लेके लगा ली है। ठीक है, हमारे जी घर जी अगर गैस नहीं आ बिल्कुल। रही है तो हमने सिलेंडर लेके रख लिया है। अगर हमें कोई और प्रॉब्लम है तो हमने उसका कोई ना कोई हल निकाल लिया है, सोल्यूशन निकाल लिया है, टेम्परेरी फिक्सेस कर लिए हैं, बट हम ना पूछते हैं फॉर गवर्नमेंट सर्वाइविंग से। वी आर डूइंग इट। सो जी सो जी। वी हैव आवर सर्वाइवल किट्स रेडी, बट वी आर नॉट ready to take a government or a responsible authority accountable. We are not going to go out and protest. A B. सर इफ वी प्रोटेस्ट वी आर अरेस्टेड बाय देम, फिर वो एक अलग नया मसला हो जाता है। That's another chat to have. बट हम अपने हक के लिए बोलना भी नहीं चाहते, और मसला ये कि इतना ज्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट है हम सब में कि हम ना बोलते हैं, और हमने अपना सर्वाइवल किट बना ली है और अब हम उसी में चल रहे हैं। बट somebody has to solve something. We need to be proactive, and by being proactive I would like to quickly start from the classrooms. And अगर हम एज एन एजुकेटर, अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को समझते हुए भी अपने एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो आई थिंक हमारी फ्यूचर जनरेशन भी वही करेगी जो हमें देख रही है करते हुए। सो यस। आई थिंक इट वुड बी बेटर कि हम एक स्टेप लें, और उस स्टेप को लेने का मतलब ये है कि हम अपने क्लासरूम में स्टार्ट करें। और क्लासरूम में स्टार्ट करने का मकसद यहीं से स्टार्ट होगा कि हम सबसे पहले अपने स्टूडेंट सवाल करें कि पानी आता कहाँ से है। तो पानी आने के दो तीन जराए हैं। एक होता है कि आपके म्युनिसिपल लाइन हो जिससे पानी आता हो। अनफॉर्चुनेटली वी आर सो अनफॉर्चुनेट दैट वी आर नॉट गेटिंग इनफ ऑफ द वाटर दैट कराची रिक्वायर्स। वो नहीं आता हमारे पास। दूसरा ऑप्शन होता है आपकी बिल्डिंग्स में या आपके अपने घरों में बोरिंग हुई भी हो। अनफॉर्चुनेटली उसका भी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि बिकॉज वी हैव बीन रिलाइंग ऑन दीज बोरिंग्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, they have been drying. We are not doing anything proactively to resolve that issue. I have a very, very, very good solution for that. I am going to discuss that solution regarding the borings, inshallah, in the later part of the sessions. Two, the third thing is that tankers, which we have to pay a very hefty cost on. ऑब्वियसली इसका कैपिटल नहीं होता, कैपिटल होता है बोरिंग में। आपने एक दफा कैपिटल लगाना होता है, आपने उससे बोर करते, उससे आपने एक्सट्रैक्ट करते रहना होता है, लेकिन वो भी ओवर द ईयर जो है वो जो है ड्राई हो जाती है, एंड देन वी हैव टू गो मच मोर डीपर। वो एक अलग कहानी है। देन कम बैक टू दी टैंकर्स। एक तो टैंकर मिलना मुश्किल काम होता है, रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल होता है, फिर आप पानी के लिए पैसे दे रहे हैं और वो फिर आता भी देर से है, भरना भी मुश्किल काम है, और ये एक हैसल है हमारे लिए। तो इट मीन्स कि टू गेट द बेसिक नेसेसिटी वाटर इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे स्कूल का वाटर, अब अपने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपका स्कूल जिस एरिया में, आई डोंट नो हु इज मैनेजिंग इट, हाउ दे आर मैनेजिंग इट। और स्कूल्स में भी बाज दफा ये इशू हो जाता है कि वाटर अवेलेबल नहीं होता। इवन ड्रिंकिंग वाटर इशू हो जाता है, एंड इवन समटाइम्स टू गो टू द वॉशरूम्स एंड ऑल, वाटर इश्यूज होते हैं। जी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा जी हो जी। जाता है, हो जाता है। राइट यू है तो जी। हैव वी एवर थॉट अबाउट डूइंग सम प्रोजेक्ट रिगार्डिंग दैट, कि हम अपने स्कूल के वाटर सिस्टम को कम से कम इतना एफिशिएंट कर दें कि हमारे स्टूडेंट्स और हम
फॉर एटलीस्ट दो 5-6 आवर्स जो हम स्कूल में स्पेंड करते हैं, या 8 आवर्स अगर हम स्पेंड करते हैं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जाए। तो सबसे पहला सवाल हमारा कि हम क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं? वेयर डज आर स्कूल्स वाटर कम फ्रॉम? सवाल सवाल, वेयर इज वाटर बीइंग वेस्टेड? अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबली, बाज दफा हम वाटर को वेस्ट भी करते हैं। बाज दफा वॉशिंग्स में, बाज दफा फ्लशिंग्स में, बाज दफा इवन 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 फॉर एनी एनी सॉर्ट ऑफ टास्क हम बाज दफा वाटर को वेस्ट भी करते हैं। तो वाटर वेस्टेज कहाँ पर हो रही है, ये देखा जा सकता है। कितना वाटर हम्म। हम सेव कर सकते हैं, हम ये देखें। और वो वाटर सेव कैसे हो सकता है, उस पर भी हम बात करते हैं। क्लासरूम में, स्कूल्स में कैसे वाटर सेव किया जा सकता है, इनके ऊपर हम बात करते हैं। उसके अलावा व्हाट सॉल्यूशंस कुड स्टूडेंट्स प्रपोज? स्टूडेंट्स क्या प्रपोज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के पास क्या सोल्यूशन है? एज एन एजुकेटर या एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम जाहिर है इसके ऊपर काम करेंगे। मगर क्या हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें, और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके स्टूडेंट्स से क्या इनोवेटिव आइडियाज ले सकते हैं, और क्या ये करिकुलम और को करिकुलम का पार्ट बन सकता है, इस पर बात होगी। एंड हाउ कुड स्कूल मेजर इम्प्रूवमेंट्स? हम स्कूल में पानी को बचाने में और पानी को रिप्लेनिश करने में या पानी को रिक्लेम करने में कितना कामयाब हो रहे हैं? स्कूल कैसे इंप्रूव करेगा, कैसे मेजर करेगा? तो हम इसकी बात करते हैं। हमारे सोर्सेज क्या होंगे? हमारे सोर्सेज हमने डिस्कस कर लिए। वाटर कहाँ कहाँ वेस्ट होता है? वाटर वेस्ट होता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई डिशेस वॉश कर रहे हैं, ठीक है, वॉशेस स्कूल्स में में ज्यादा एग्जैक्टली। वॉशिंग में ही होता है। उसके अलावा अगर हम वॉशरूम्स में फ्लश के यूज कर रहे हैं, या अगर हम फेस वॉश के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा वाटर जो यूज हो रहा है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि वाटर का इतना ज्यादा यूज स्कूल में हो रहा है। अगर हम पानी पीने के लिए हमने कोई वाटर टैंकर्स, वाटर वाटर कूलर्स लगाए हुए हैं या डिस्पेंसर्स लगाए हुए हैं, तो हो सकता है वहां पे स्पिलेज और लीकेजेस से हो सकता है वाटर वेस्ट हो रहा हो। लीकेज हो जाती है। ठीक है, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जहां पर हमारे पास हो रहा होता है। हमें चाहिए कि हम अपने स्कूल में एक एक्टिविटी डिजाइन करें, दैट दैट डे और दैट आवर शुड बी कॉल्ड वाटर ऑडिट। दैट एक्टिविटी शुड बी नोन एज वाटर ऑडिट। अब हम करने जाएंगे वाटर ऑडिट, और हम क्लासरूम्स वाइज, ग्रुप वाइज, स्टूडेंट वाइज, टीचर्स वाइज, स्कूल में या क्लासरूम वाइज भी हम कर सकते हैं, इसको स्कूल वाइज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिविटी। हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। और हमने अपने वाटर ऑडिट में 5 सवालों के जवाब लेकर ग्रुप वाइज आना है। अब एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पूरे स्कूल का वाटर ऑडिट करेगा, या एक ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पूरे स्कूल का वाटर ऑडिट करेगा, और वो आइडेंटिफाई करेगा कि किस किस पॉइंट पर वाटर लीकेजेस हो रही हैं। आमतौर पर हम माइनर लीकेजेस को इग्नोर करते हैं, और इग्नोर उससे कर वाटर जो देते है हैं। वेस्ट, वाटर वाटर वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा टैप है जो कि जो है, हमें पता है कि वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर वेस्ट कर रहा है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है जिसकी एक पाइप है जो कि बिल्कुल माइन्यूट से लीक कर रही है, हमने उसे इग्नोर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वाटर डिस्पेंसरी है, और हर स्टूडेंट आता है, उसमें पानी पीता है, और पानी पीने के बाद थोड़ा सा पानी जो है वो ग्लास में छोड़ के चला जाता है। अगला स्टूडेंट आता है, उस पानी को जो है वो ड्रेन करता है, और ड्रेन करने के बाद जो है उसको जो है छोड़ देता है, और ड्रेन करता है, और फिर चला जाता है। उससे स्पिलेज भी होती है, गंदगी भी होती है, और साथ साथ जो है वाटर भी वेस्ट हो रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास, सपोज करें कि हमारी जो एक हेल्पिंग स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, वो रोजाना जो है वो मॉपिंग करती हैं। मॉपिंग करते हुए वो वाटर लेती हैं, और वाटर लेने के साथ साथ वो क्या करती हैं, टैप खोलकर चली गई, उसमें सर्फ और जो भी सर्फेक्टेंट्स और जो भी उन्होंने डालना है वो डाला, उन्होंने वो वाटर खोल के चली गई। और उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद आई, सफाई करते करते पूरी जगह का जो है उन्होंने मॉपिंग किया, एंड देन उन्होंने टैप बंद किया। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। एंड दिस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैन ऑल्सो बी डन बाय द स्टूडेंट एज वेल। वो स्टूडेंट गया है वॉशरूम, उसने मुंह धोना था, फेस वॉश करना था। अब वो फेस वॉश करते करते पूरा का पूरे देर तक जो है वो टैप खोल के बैठा है, और जो हमारे पास जो वाटर हम्म। सेंसिटिव टैप नहीं है, तो वो वाटर वेस्ट हो रहा है। So these are the activities that students, teachers, maybe supporting staff, and knowingly or unknowingly does in this school, that becomes the reason of the water wastage. And maybe many other also doing something that may become the reason of the water wastage. I may not be able to comprehend because I am not going to your school. So situation depending upon the context to context or school to school. So these are the problems that वन ग्रुप वुड बी असाइंड कि आपने जाकर वाटर को एनालाइज करना, और वाटर कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है, ये वाटर ऑडिट आपने कर कर आना है। देन देयर वुड बी ग्रुप जो कि साइंस का हो, um, वो जाकर कैलकुलेट करे कि भाई कितना पानी हम बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक
अजम्पशन लगाएं कि वाटर ऑडिट के दौरान हमें पता चला कि डेली जो पानी कंज्यूम होता है, वाटर ड्रिंकिंग जो हम कंज्यूम करते हैं, फिल्टर में 19 लीटर की बॉटल होती है, और हम जो है वो टोटल 5 बॉटल्स दिन में कंज्यूम करते हैं सुबह से लेके छुट्टी तक। 19 लीटर की 5 बॉटल्स हमारे स्कूल में जो है इस्तेमाल होती हैं। और जब अगर हम वेस्टेज कैलकुलेट करें, अगर हर हर 1 लीटर, हर 500 ml का, या सब सपोज कर लें 200 ml की हमारे पास कप की सर्विंग है, और उस 200 ml की कप की सर्विंग में हमारे पास हर रोज 30 ml वाटर जो है वो हर स्टूडेंट जो है वो पानी छोड़ के चला जाता है उसमें अपना ड्रिंकिंग, और उसके बाद ऑब्वियसली जब अगला स्टूडेंट आता है तो वो उसको जो है वेस्ट करता है। अब हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं मैथ्स के स्टूडेंट्स के साथ बैठकर, मैथ्स की टीचर इसमें हेल्प कर सकती है हमारी, कि 250 ml अगर एक है और एवरेज कैलकुलेशन हो रही है कि भाई सपोज करें कि जो है वो 50 ग्लास या 60 ग्लास है, तो वो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन बता सकती है कि सिर्फ वाटर वेस्टेज रोकने से डिस्पेंसर पर ही हम जो 5 बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से 4 बोतल इस्तेमाल होंगी, और एक बोतल जो है वो हमारी रेगुलर बेसिस पर बच जाएगी। ये हमारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो गई, मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई। सिमिलरली विल गो बैक टू द वॉशरूम एंड वी विल सी कि भाई वॉशरूम में जो है फ्लश यूज होता है, और फ्लश यूज होने पर जो है वो इतना जो है एक फ्लश में जब सपोज करें कैपेसिटी है 3 लीटर्स वाटर वेस्ट होने की, तो अगर हम इसमें फ्रेश वाटर यूज करें तो वो 3 लीटर जो है इस्तेमाल हो रहा है। वी नीड टू डिजाइन अ सोल्यूशन। अब वो सोल्यूशन क्या है, कि जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं हैंड वॉशिंग के लिए वॉश बेसिन पे, वो बजाय इसके कि वो ड्रेन हो, वो ड्रेन होने के बजाय हम ऐसा पाइपिंग सिस्टम डिजाइन करवा दें कि वो जाकर जो हमारे, किसी प्लांट या ट्रीज में जा रहा हो। वो किसी प्लांट या ट्रीज में तो नहीं भेज सकते क्योंकि या उसमें सोप और ट्रीज जी। सरफेक्टेंट्स होते हैं। हम इसको इस तरह कर सकते हैं स्कूल लेवल मतलब पर। स्कूल लेवल पर अच्छा अच्छा। प्लांट और ट्रीज में करने के लिए हमें ट्रीटमेंट चाहिए होगा, तो ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे, वो एक्सपेंसिव होगा, उसमें एक एडिशनल कॉस्ट अच्छा। आएगी। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि सपोज करें कि हमने हैंड वॉश किया, हैंड वॉशिंग स्टेशन के बाद हमने एक टैंक लगा दिया जिसमें स्टोर हो रहा है वाटर, बजाय इसके कि वो ड्रेन हो रहा है। अब ये जो वाटर है हम ये ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे फ्लशिंग टैंक्स में जो कि वॉशरूम पे लगे होते हैं। अब फ्लशिंग टैंक्स में बजाय इसके कि आप फ्रेश वाटर यूज कर रहे थे, आपने फ्लशिंग वाटर यूज करने के बजाय जो आपने ये सोप वाटर जो यूज्ड वाटर था वो आपने इस्तेमाल कर लिया। तो अब आपकी जो फ्लशिंग भी इसमें इस्तेमाल हो गई, और जो है आपका जो है वो वाटर जो है वो इस तरह सेफ हो गया। इसी तरीके से इसी तरीके से अगर वजू का पानी है, अगर आपकी आपके आपकी जो है स्कूल में कोई मस्जिद बनी हुई है, कोई प्रेयर एरिया बना हुआ है, वहां पर ये चीज हो सकती है जो आपने प्लांटेशन का कहा था। मैं बिकॉज क्योंकि पाकिस्तान बेवरेज में काम करता हूं तो हम ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, और हम ये प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बड़ी मसाजिद में जाकर एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें हम करते हैं कि जितना भी वजू का पानी आता है उसको हम जो है पहले इनिशियल ट्रीट करते हैं। उस इनिशियल ट्रीटमेंट में बेसिकली पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं, सैंड होती है, और सैंड से हम उसको उसको क्लीन कर उसको देते हैं। उसको क्लीन कर देते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं। हम्म। और फिल्टर आउट करने के बाद either we use it as for the plantations, or for some advanced systems we also inject it back into the ground to replenish the groundwater bore। तो दो किस्म के प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं इधर इधर एक तो हम बाज दफा करते हैं कि अगर हमें लगता है कि इस जगह पे पानी जो है वो सपोज करें अगर बोरिंग का पानी है, या वो जो है इस तरह का पानी है कि वो प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और वो ऐसा पानी है कि हम उसको री इंजेक्ट कर सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, तो हम एक एक्सटेंसिव सिस्टम लगाकर उस पानी को, जितना भी पानी वजू में जाया हो रहा होता है, वो सारा हम पानी फिल्टर आउट कर कर क्लीन करके एक इनिशियल बेसिक स्टेप्स के बाद हम उसमें इंजेक्शन बोर बनाते हैं, और उसको करीब रखते हैं उस बोर के जिससे हम पानी ले रहे होते हैं वजू का। और हम क्या करते हैं उसको उस वाटर टेबल पे जाकर जो इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे पानी जितना भी सारा वेस्ट हो रहा होता है वो सारा का सारा पानी जमीन में वापस जाता है, और इवेंचुअली जो हमारी बोरिंग ड्राई हो रही होती है वो बोरिंग जो है वो क्या होती है ऊपर आ जाती है। और इसी प्रोजेक्ट के साथ साथ हम इस प्रोजेक्ट में एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मसाजिद की छत पे जितना भी पानी जमा हो रहा होता है बारिश का, उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम थ्रू पाइप लेकर इसी वेल में लेकर आते हैं, और वेल में लेकर आने के बाद इसको हम जमीन के अंदर दोबारा इंजेक्ट कर देते हैं। जमीन के अंदर दोबारा इंजेक्ट करने से फायदा ये होता है कि जो पानी आपका ड्राई अप हो रहा है, और जो पानी जाया हो जाता है बारिश में, साफ सुथरा पानी और अच्छा पानी, वो पानी जो है वो दोबारा जमीन में वापस चला जाता है, जिससे पानी का वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑब्वियसली एक कैपिटल मांगता है, इसमें ऑब्वियसली स्कूल का कैपिटल है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप ये अपने स्कूल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में एक तो नंबर बहुत ज्यादा नहीं आएगा, और इसका इम्पैक्ट भी शायद बहुत ज्यादा ना हो। मगर हम अपनी कैपेसिटी में रहकर इस तरह भी कर सकते हैं कि जो पानी बारिश का पानी है उसमें सिर्फ हमने एक पाइपलाइन लगानी है,
छत से जितना भी पानी आ रहा है वो पाइपलाइन से पानी लेकर आपने जो है वो अपनी बोरिंग के करीब लाकर बोरिंग में भी आप डाल सकते हैं। सिर्फ एक मैश लगाना होगा जिससे कोई मट्टी या कोई कचरा ना आ जाए। और ये बहुत सारे लोग, इंडियन वेबसाइट्स आप देख लें, यूट्यूब देख लें, आपको इसके बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट आइडियाज मिल जाएंगे जो आप अपने स्कूल और इवन घरों में भी अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब में मैं रिसेंटली अभी सुन रहा था कि पंजाब में रिसेंटली दे हैव अप्लाइड दिस लॉ टू एवरी एवरी हाउसिंग सोसाइटी, कि आपने ये सिस्टम डेवलप करके देना है हर घर में कि जितना भी बारिश का पानी है वो सारा का सारा या तो टैंक में रिस्टोर हो इनके पास, ताकि वो स्टोरेज कर लें, या तो, और अगर स्टोर नहीं हो रहा तो या तो फिर वो जमीन में वापस जाए। तो इससे दोनों मसले हल होंगे जो हमारे कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में सैलाब आ जाते हैं पानी के, अनफॉर्चुनेटली वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं। और साथ साथ जो पानी भी सेफ हो रहा है और पानी का जो वाटर टेबल कराची में जो स्पेशली जा रहा है वो भी बच रहा है। तो एक तो ये वाली चीज हो गई। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स और क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स और किस किस तरीके से इनोवेटिव आइडियाज दे सकते हैं, इसके ऊपर बहस हो सकती है, इस पर डिबेट्स हो सकती हैं, इसके ऊपर हम अपने एक्टिविटीज अलाइन कर सकते हैं। ये चीज हो गई। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है कि हम मेजर कैसे करेंगे कि हमने कितना कितना पानी बचाया, कितनी कॉस्ट सेव हुई, और कितना ज्यादा जो है वो पानी सेव हुआ। और इसको हम अपनी रिपोर्टिंग्स में भी शो कर सकते हैं कि हमारा स्कूल जो है वो एसडीजी कंप्लाइंट है, हमारा स्कूल जो है वो वाटर सेविंग एफिशिएंट है। और हम अपने सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस पर भी बात होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ वेस्टिंग द वाटर एट द फिल्टर। अगर आपके डिस्पेंसर के ऊपर पानी जाया हो रहा है, तो अगर मुझे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐड करना होगा तो आई वुड क्विकली लाइक टू ऐड अ पोस्टर जहां पर मैं इस्लामिक कोट्स लगाऊंगा, अहादीस लगाऊंगा, कुरानिक रेफरेंसेस लगाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि पानी जाया करना जो है वो जो है एक तरीके से गुनाह है, हमें किस तरीके से हमारे मजहब ने गुनाह है जी। कहा है कि हम्म। किस तरह हमें पानी बचाना है और किस तरीके से हमें पानी को एहतियात से इस्तेमाल करना है। मैं अगर इस्लामिक का टीचर हूंगा तो मैं जाकर बच्चों को उस पर अवेयरनेस दूंगा। मैं अगर साइंस का टीचर हूंगा तो मैं जाकर बताऊंगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जो है पानी जाया करने से हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या लॉस कर रहे हैं। अगर मैं एक मैथ्स का टीचर हूंगा तो मैं उसको इम्पैक्ट समझाऊंगा कि नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट कॉस्ट बट इन टर्म्स ऑफ वाटर वाटर क्वांटिटी, कि अगर मैं इतना पानी आज सेव कर रहा हूं तो उसका कितना कॉस्ट सेव हुई है, और अगर मैं इतना पानी जाया कर रहा हूं तो मैं कितना ज्यादा रिसोर्स वेस्ट कर रहा हूं। तो मैं एज अ मैथ्स टीचर ये कर सकता हूं। अगर मैं एज अ इंग्लिश टीचर बात करूंगा तो मैं उनके अंदर ये अवेयरनेस डेवलप करूंगा, ये सिविक सेंस डेवलप करूंगा, ये सोशल सेंस डेवलप करूंगा कि पानी सिर्फ एक मसला नहीं है कि आपने जाया कर दिया है। आपने पानी पानी को उसको 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 किस तरह से आर्टिकुलेट करना है, कैसे ऐसे लिखना है उस पे, कैसे डिबेट होल्ड करनी है इंग्लिश में, मैं उस तरह की एक्टिविटीज डिजाइन करूंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स, डिपेंडिंग अपॉन योर करिकुलम, वी कैन modify this activity into our entire school project as well and into our subject based context as well। तो अगर हम इस पूरी एक्टिविटी को डे वाइज स्कूल वाइज डिजाइन करें वाटर ऑडिट के नेम से, एंड देन हर सब्जेक्ट का क्लास, हर टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट से कोरिलेट करके अगर इस एक्टिविटी को डिजाइन करके एक ग्रुप एक्टिविटी डिजाइन करे, इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड एक्टिविटी फॉर द स्कूल। इसमें बहुत ज्यादा शायद पैसे भी ना लगे। और अगर आपका स्कूल कमिट करता है थोड़े बहुत भी इन्वेस्टमेंट का, कि अगर बारिश के पानी को इवन वो सिर्फ हल्का सा एक छोटा सा टैंक लेके भी स्टोर करने की अगर बात कर दें, या अगर वो थोड़ा सा वुजू के पानी भी थोड़ा सा एक पाइप लगाकर जमीन पे डालने की बात कर लें, या सिर्फ प्लांट को देने की बात कर लें कि चलो हमने वुजू का जितना भी पानी था उसके आगे हमने एक टैंक लगाया, टैंक लगाने के बाद उसी पानी को हमने पाइप से लेकर जाए अपने अपने स्कूल के गार्डन में देना शुरू कर दिया। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा शायद इन्वेस्टमेंट नहीं मांगेगी, मगर हमारे स्कूल में एक कल्चर डेवलप होगा सस्टेनेबिलिटी का, और वो नजर आएगा हमारे 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 स्टूडेंट्स को भी नजर आएगा। एंड स्टूडेंट्स do not learn from what we do lecture them, students do learn from what we actually practice in our day to day operations। तो अगर स्टूडेंट्स अपने इर्द गिर्द देखेंगे ये सब चीजें होते हुए तो वो इसको आई थिंक ज्यादा बेहतर अकोमोडेट कर पाएंगे। और इस एक्टिविटी का मकसद पूरा का पूरा स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग डेवलप करना था। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्रीज की जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं 5 मिनट लूंगा, आपको इंडस्ट्रीज की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा, एंड देन वी विल कम बैक टू आवर स्कूल्स एंड वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर स्कूल्स एज वेल। So I would like to share another screen which I have in examples of few industries. I hope my new screen is visible, in which it is written sustainability actions, how industries and organizations are
responding. And this is completely about the Pakistani context. And being a part of PepsiCo, I would like to quickly elaborate what PepsiCo Pakistan is being doing right now. So we have this global supply chain agenda called PepsiCo Positive, which is also about PepsiCo People Plus Planet. It is a movement that we are doing for the people and the planet, and we are going to win with the purpose. It has a global supply chain tools which have four parts: positive choices, positive planet, positive value chain, and positive agriculture. A lot of stuff is happening. I would just like to give few examples so that you can have an idea that what we are doing as a company. Um, for example, we are conserving. There was a time, I'm talking about my own plant, which is based in Karachi. There was a time when we used to produce a 1 liter bottle. पेप्सी की 1 लीटर की बॉटल बनाने के लिए हम 1.6 लीटर पर लीटर वाटर यूज किया करते थे। यानी कि 1 लीटर बॉटल बनाने के लिए हम 1.6 लीटर पानी का इस्तेमाल किया करते थे। एंड राइट नाउ एज ऑफ 14th August 2026 वी आर यूजिंग ओनली 1.2 लीटर पर लीटर, विच मीन्स 1 लीटर बॉटल बनाने के लिए अब हम सिर्फ 1.2 लीटर वाटर यूज करते हैं। विच मीन्स के 1 लीटर तो आपका वाटर कोल्ड ड्रिंक में चला गया, और सिर्फ 0.2 लीटर जो है वो वाटर जो है वो यूज होता है, वेस्ट होता है हमारे प्रोसेस में। अर्लियर इट वॉज 0.6। तो हम अपने 0.6 वाटर से लेकर हम 0.2 पर वापस आए, 0.2 पर लेकर आए। दिस इज द स्टैंडर्ड इन द पेप्सिको राइट नाउ। सो हमने पानी को सबसे पहले It's a कंजर्व great किया। success. सबसे पहले हमने अपने पानी को कंजर्व किया, नंबर वन। नंबर टू, हमारा टारगेट है रिप्लेनिशमेंट। अब जो ये 0.2 लीटर हम जाया कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यूज कर रहे थे और वेस्ट कर रहे हैं अब, तो इसका ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल लेवल पे जब नंबर आता है तो वो नंबर बहुत ज्यादा एक बड़े क्वांटम में डेवलप हो जाता है पूरे साल का, और वो बनता है तकरीबन कोई बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मीटर क्यूब एंड लीटर्स में। तो हमारा एक और टास्क है जो कि वाटर कंजर्वेशन से था, वाटर यूजेज से था। सेकेंड टास्क हमारा होता है वाटर रिप्लेनिशमेंट, विच मीन्स कि जितना पानी हमने जाया किया उतना ही इक्विवेलेंट पानी हम सोसाइटी को वापस करेंगे, वन वे और दी अदर। अब उसी कड़ी में हम क्या करते हैं, उसी उसी सिलसिले में हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अपना एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें जितना भी पानी जाया होता है हम उस पूरे पानी को ट्रीट करते हैं केमिकली, बायोलॉजिकली, एंड देन ट्रीट करने के बाद उसको हम बाय आरओ रीयूज करते हैं। रीयूज हम अपने ऑपरेशंस में भी करते हैं इंटरनली, नॉट फॉर मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स बट फॉर द यूटिलिटीज पर्पस। फॉर एग्जांपल कूलिंग टावर्स में इस्तेमाल कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हम वाटर सोलर सोलर वॉश कर लेंगे उससे, फॉर एग्जांपल वॉशरूम्स में यूज कर लेंगे, गार्डनिंग में यूज कर लेंगे, गाड़ी वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे उस पानी को। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, मगर बाकी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो पानी हमारा बच जाता है उस पानी को हमने सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एमओयू साइन किया, और वो हमारा रिमेनिंग वाटर जितना भी होता है वो उसको टैंकर बाय टैंकर लेकर जाते हैं। और जितने भी नियर बाय एरियाज में ग्रीन बेल्ट्स बने हुए हैं, जमी गार्डन्स हैं करीब में, लोकल गवर्नमेंट की मदद से हम वो पानी सारा का सारा वहां पे प्लांटेशन ड्राइव्स में इस्तेमाल करते हैं। पहला प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट हमारे पास होता है वाटर रिप्लेनिशमेंट से रिलेटेड, जिसमें हम क्या करते हैं, हम मस्जिद के साथ कोलैबोरेट करते हैं, मस्जिद पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि उनके सारा का सारा सिस्टम जो बारिश के पानी का होता है और जो उनके वजू का पानी जो अदर एनीवेज जाया हो रहा है, हम उसको उसको एक पाइपलाइन में जोड़ते हैं, एक वेल बनाते हैं और बोर के करीब लाकर उसको इंजेक्शन बोर कर देते हैं, या एवोल्यूशन वाटर रीयूज सिस्टम डेवलप कर देते हैं। दिस इज द अनदर प्रोजेक्ट। देन व्हाट वी डू, एक इसके अलावा हमारे पास क्या प्रोजेक्ट होते हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं कि हम या तो ट्रीज लगाते हैं, या फिर हम ऐसी जगहों पे जहाँ पे वाटर लीकेजेस हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी एरिया है, या कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई ऐसा स्कूल है, मस्जिद है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे वाटर लीकेज हो रही है, हम उन जगहों पर वाटर सेंसिटिव टैप्स लगवा देते हैं ताकि पानी जाया ना हो, और वो हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसकी रिपोर्टिंग्स करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम कोलैबोरेट करते हैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे हम WWF के साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं। WWF हमारी रहनुमाई करता है और वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे बिहाफ पर भी करता है। तो इस तरह की चीजें हम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की वाटर के अलावा बात करूं, तो मैं बात करूंगा हमारे रिसाइकलिंग बॉटल्स की। अगर आज के दौर में आप प्लास्टिक की बॉटल्स देखते हो तो उस बॉटल के ऊपर पेप्सी क्लेम करता है कि 100% रिसाइकल्ड बॉटल्स हैं। इनिशियली इट वाज नॉट। पैट रिसाइकिल नहीं होता था। पेप्सी ने हैवी इन्वेस्टमेंट की, कोका कोला ने हैवी 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 इन्वेस्टमेंट्स की, और पाकिस्तान में एक प्लांट लगवाया जिससे ऐसा बॉटल बनाई गई जो कि रिसाइकिल की जा सकती है। अब वो बॉटल हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक की, तो वो एक चीज की गई।
इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, हमारे जो जो कार्बन 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 फुटप्रिंट्स हैं उसके ऊपर काम किया जाता है, कम्युनिटीज के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है। जैसे दिस सेमिनार इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल एजेंडा, जहां पर मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी की एज अ पार्ट ऑफ पेप्सिको पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज इन माई कैपेसिटी आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पीबीएल पाकिस्तान बेवरेजेस एज वेल, सो आई एम डूइंग माई पार्ट एज वेल। इसी तरीके से पेप्सी को अपने लेवल के ऊपर भी ये काम करता है और कम्युनिटीज में अवेयरनेस फैलाता है, स्किल्स डेवलपमेंट करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ करता है। तो ये वाली चीजें, इसके अलावा फार्मर्स को सपोर्ट करता है और ऐसे ऐसे मेथड्स बताता है जिससे ना सिर्फ वाटर कम यूज हो, बल्कि जब हमारे पोटैटोज बनते हैं फॉर द लेस, एंड जस्ट जब हमारा पानी जो है एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है तो शुगर के लिए, तो पेप्सी को फार्मर्स को उस वक्त भी गाइड करता है कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल वे में एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं पेप्सिको की, जिसके बारे में बहुत इलेबरेटिव बता सकता था, मगर इसके अलावा भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वन सच ऑर्गेनाइजेशन आई वुड लाइक टू कमेंड इज जीएसके पाकिस्तान। इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, अ लॉट ऑफ यू हैव बीन यूजिंग देयर medications, but the kind of work they have been doing, I have been recently visiting their initiatives in collaboration with WWF Pakistan, and they have been excellent. They have been promoting a lot of community services. मैं इनके इनके एक फील्ड ट्रिप पे साथ गया इनके, और उधर उन्होंने जो है कम्युनिटीज पे, डिस्पेंसरीज पे जाकर जो है इन्होंने जो है वो आरओ प्लांट्स लगाए हुए हैं, जहां पर लोकल नियर बाय कम्युनिटीज रियल टाइम में, जिनके पास एक क्लीन वाटर की, ड्रिंकेबल वाटर की एक्सेस नहीं थी, वो रोजाना बेचारी आती हैं, पानी लेकर जाती हैं खवातीन अपने सरों पे रखकर, और जो है पानी लेके जा रही होती हैं। और क्योंकि इनका फार्मास्यूटिकल सेटअप है, तो ये डिस्पेंसरीज में जो है वो डॉक्टर इन्होंने सेटअप किया हुआ है, और जो है वो इन्होंने हर्बियन के साथ कोलैबोरेट किया हुआ था, और वहां जाकर ये जो है दवाइयां भी देते हैं, ट्रीटमेंट्स भी करा रहे होते हैं लोगों की कम्युनिटी लेवल के ऊपर, अपने वाटर यूजेज इशू के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और जो है इन्होंने भी कमिटमेंट की हुई है कि 2045 तक जो है ये अपने वैल्यू चेन्स के अंदर जो है वो जितनी भी इनकी गैस इमिशंस हैं उसको जीरो पे लेकर आ जाएंगे, यानी कि कोई भी क्लाइमेट हैजिडस चीज अपने सिस्टम से आउट कम अज कम नहीं करेंगे। तो ये वो चीजें जो कि इंडस्ट्रीज कर रही हैं। इसके अलावा इन्होंने प्लांटेशन ड्राइव्स भी बहुत जबरदस्त की हैं, डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स में जाकर जो है वो ये प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। एंड फॉर दैट, अगर आपका स्कूल या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड है, आई वुड लाइक टू गिव यू एन आइडिया दैट आप जीएसके और WWF पाकिस्तान को कोलैबोरेट इनवाइट कर सकते हैं अपने स्कूल्स में, उनसे उनको ईमेल्स कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो आपको बताएं कि जो है वो हो सकता है कि वो आपकी मदद करें। मे बी वाटर सेंसिटिव टैप्स के लिए भी आप WWF पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे कॉम्पिटिटर हैं कोका कोला पाकिस्तान, दे हैव बीन डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब एज वेल। इनका भी ग्लोबल विजन यही है कि अ वर्ल्ड विदाउट वेस्ट एंड अ वाटर सिक्योर वर्ल्ड, और ये भी रिप्लेनिशमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। इनके प्रोजेक्ट्स भी बहुत जबरदस्त हैं। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि ये करते हैं, और वो जो है कहते हैं नेचर बेस्ड सोल्यूशन, बाय प्लांट्स वेस्ट वाटर ट्रीट किया जा रहा है, और एक बेहतरीन सिस्टम है। ये जो है एक पॉन्ड बनाते हैं, पॉन्ड बनाने के बाद जो है उसमें जो है वेटलैंड लगाते हैं। वेटलैंड बेसिकली क्या होता है कि एक पौधा होता है जो कि पॉन्ड की सरफेस के ऊपर तैर रहा होता है, और वहां पर जाकर जो है वो पौधा जो है पानी को ट्रीट कर रहा होता है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं ये लोग भी, रिसाइकलिंग जो कमो बेस जो पेप्सिको के प्रोजेक्ट्स हैं वही प्रोजेक्ट जो है वो कोका कोला पाकिस्तान भी कर रहा है। WWF पाकिस्तान के बारे में आई वुड लाइक टू suggest you all who are here and who maybe like get to see this video through YouTube. Uh, they should contact WWF Pakistan. They should try to collaborate with them. They should try to maybe ask that if they can do anything about your schools, and if you can participate in any awareness session and anything else regarding the water, and maybe regarding the conservations and education and awareness. They have been doing a great job. WWF पाकिस्तान के साथ भी आप लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूनिलीवर पाकिस्तान। दे हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब एज वेल। इन्होंने भी जो है नेट नेट जीरो इमिशन की अपने बात की है, 2021 से ये लोग काम कर रहे हैं। इनका टारगेट भी 2030 तक अपने नेट जीरो इमिशंस पे काम करना है। तो ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ जॉब्स, दे हैव बीन doing it for the sustainabilities, and we as a school can take part in such actions and can take benefits as well from these organizations because they are making an investment. एंड अगर हमारे स्कूल्स में या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम इन्हें अप्रोच करते हैं और बात करते हैं, तो probably they might be help us, they might be able to help us in this domain as well if our resources are not there.
और अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो ऑब्वियसली वी कैन डू इट आवरसेल्व्स एज वेल। तो इन्हें भी अप्रोच किया जा सकता है। एंड नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन एज वेल, फ्रॉम क्लासरूम थ्योरीज टू द रियल वर्ल्ड, हमने इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की बात की और हमने देखा कि इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, वाटर स्टूवर्डशिप के ऊपर काम कर रही हैं। अब हम बात करेंगे केस स्टडी पर, और मैं आपको लेकर चलूंगा चैट जीपीटी पर। और चैट जीपीटी पर डालेंगे हम कुछ प्रॉम्प्ट्स, और हम स्कूल के ऊपर बात करेंगे कि स्कूल जो है वो कैसे सॉल्व करेगा। और आज का हमारा जो एक लाइव डेमो होगा जिसमें हम काम करेंगे इफ एआई बिकेम योर सस्टेनेबिलिटी टीचिंग असिस्टेंट। तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। Alishba, I would like to answer that, but how can we apply for volunteering work? देखिए अलिशबा, हमें अप्रोच करना होगा ऑर्गेनाइजेशंस को वॉलंटियर वर्क के लिए। अगर आप WWF पाकिस्तान के साथ अप्रोच करना चाहती हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर तमाम डेटा अवेलेबल है। आप WWF पाकिस्तान की वेबसाइट जाएं, पढ़ें, उनके पास ईमेल एड्रेसेस मेंशन है। एंड अपॉर्चुनिटीज उनके लिंक्डइन के ऊपर भी आ रही होती हैं, फेसबुक पर भी आ रही होती हैं, और वो करते हैं, अप्रोच करते हैं, रिप्लाई करते हैं। मैं खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हूँ। इसके अलावा आप लिंक्डइन के ऊपर उनको अप्रोच कर सकते हैं। एक 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 सेज है जिसमें कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, यानी कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपकी कुल कायनात, आपकी कुल वर्थ जो है ना, वो आपकी नेटवर्किंग है। अगर आप नेटवर्किंग करते हैं तो बहुत बहुत फायदा होता है। तो अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है थ्रू लिंक्डइन, थ्रू मे बी फेसबुक, आप अप्रोच कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। थ्रू ईमेल आप अप्रोच कर सकते हैं। मैनी ऑफ यू हु आर इन दिस सेशन राइट नाउ, मैंने आपको कैसे अप्रोच किया? आई डोंट नो यू ऑल। मैं आपको पर्सनली नहीं जानता था। यकीनन मैंने आप लोगों को अप्रोच वाया ईमेल ही किया है, आपके स्कूल और ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए ही किया है। मैंने एक कोल्ड ईमेल बनाई थी फर्स्ट डे ऑफ द सेशन, और वो मैंने रैंडम स्कूल्स के अंदर जो है मेरी आवाज नहीं आ रही है? इज माई वॉइस ऑडिबल? प्लीज कंफर्म कि मेरी Just आवाज। some words are not clear. इज इट नाउ? इज इट नाउ? Some words were not clear. 2 मिनट वेट करते हैं, Is दो it मिनट now okay? ओके ओके ओके, इज इट नाउ ओके? लेट मी चेक, A लेट little bit okay, ओके, yes. वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, लेट मी टेस्ट माई माइक्रोफोन। हेलो। और, और might be signal issue भी हो सकता है ऐसा. या इट कुड बी अ सिग्नल इशू बिकॉज आई कैन हियर व्हाट आई एम सेइंग। Yeah, it could be a ठीक है, signal okay issue. sir, Yeah, continue please. yeah, it could be a signal issue. Yeah, Alishbhai is saying that voice is audible. Yes. So first, let's do the AI demo. We are going to paste a prompt in the Chat GPT or Claude, any one of them, and we will do a science project. और हम उसको बोलेंगे कि हम साइंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देन हम उससे बोलेंगे कि यार इसको आप जैसे सब्जेक्ट वाइज डेवलप करो, और उससे हम एक डॉक्यूमेंट ड्राइव करेंगे। ठीक है। तो अब मैं अपनी स्क्रीन लेके जाऊंगा चैट जीपीटी के न्यू चैट पर, और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, और ये प्रॉम्प्ट जो है इंशाल्लाह जब आपके सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उस ड्राइव फोल्डर में ही मैं वो प्रॉम्प्ट जो है आपके लिए लीव कर दूंगा। ठीक है। मैं प्रॉम्प्ट पहले कॉपी पेस्ट कर लूँ एंड देन आई विल शेयर माई स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। सिर्फ 2 प्रॉम्प्ट्स हम लेंगे, और ये प्रॉम्प्ट्स भी मैंने चैट जीपीटी से ही बनवाई है, मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया था। ठीक है, लेट्स शेयर द स्क्रीन, और हम स्क्रीन पे जाएंगे चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी की हमारी न्यू चैट ओपन है। आप न्यू चैट पर जाएंगे और आप एक प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। मैं प्रॉम्प्ट थोड़ी सी रीड कर देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन हैव एन आइडिया। आई एम अ ग्रेड 7 टीचर इन पाकिस्तान। मैं ग्रेड 7 टीचर हूँ पाकिस्तान में। और मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देता हूँ। अभी फिलहाल हम सब्जेक्ट नहीं मेंशन कर रहे, सब्जेक्ट हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में मेंशन करेंगे। हमें डिजाइन करना है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हमने एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग डिजाइन करना है प्रोजेक्ट अराउंड दिस स्कूल रियल स्कूल प्रॉब्लम। स्कूल प्रॉब्लम्स हमारी क्या क्या है? स्टूडेंट वेस्ट टू मच वाटर एट स्कूल, नंबर 1। ठीक है। क्रिएट अ क्लासरूम रेडी प्रोजेक्ट। अब स्टूडेंट्स पानी बहुत ज्यादा जाया करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमने एक क्लासरूम रेडी प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें पावरफुल ड्राइविंग क्वेश्चंस हो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो, सिंपल डेटा कलेक्शन एक्टिविटी हो, टीम रोल्स हो, स्टूडेंट क्रिएट करें फाइनल सोल्यूशन और प्रोडक्ट। और किस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है वो रेलेवेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तक जाएगा, क्योंकि हम मैप कर रहे हैं अपनी सारी चीजें एसडीजी से। अ सिंपल असेसमेंट आइडिया, क्योंकि हमने एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिशनल सिस्टम में
रहना है और उसको असिस्ट भी करना है, उसके नंबर्स भी देने। कीप इट रियलिस्टिक, लो कॉस्ट, स्टूडेंट सेंटर्ड एंड अचीवेबल इन पाकिस्तानी स्कूल. Do not make it generic environmental activity. Make students investigate the real problem, collect evidence, develop a solution, present their finding. I am sending this prompt to the chat GPT. Meanwhile, I would like to take a 1 minute silent for the azan. ओके, लेट्स गेट बैक टू दी आर प्रोजेक्ट. हमने एक प्रॉम्प्ट दी थी और वो प्रॉम्प्ट बहुत सिंपल सी थी. हमने उसको बोला कि आप 7 क्लास के टीचर हो और जो है आपने जो है क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बनानी है. ठीक है. हमने उसको बेसिक्स बता दिए थे और बेसिक्स बनाने के बाद उसने हमें ग्रेड 7 की पीबीएल की एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे एक प्रोजेक्ट दिया है जिसका नाम है एवरी ड्रॉप काउंट्स. वेयर इज आवर स्कूल्स वाटर गोइंग. सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर स्कूल आर एक्चुअली वेस्टिंग, why is it happening and what can be realistically do to reduce. इन्वेस्टिगेशंस हो गई, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ गए, स्टूडेंट्स क्या क्या ऑब्जेक्ट करेंगे, क्या क्या चीजें इन्वेस्टिगेट करेंगे उसने मेंशन कर दिया. कैंटीन जाएंगे, गार्डन जाएंगे, क्लीनिंग एरियाज में जाएंगे. ऑब्वियसली वी विल हैव टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू आवर ओन कॉन्टेक्स्ट और हम थोड़ा सा और माइंड मैप करेंगे जब हम अपने स्कूल के बारे में अपने स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. ठीक है. और वही सारी बातें जो मैंने आपको समझाई थी वही वाली बातें यहाँ पर हो रही हैं कि टैप्स जो है वो लेफ्ट रनिंग करे जा रहे हैं, वाटर ओवरफ्लोइंग हो रहा है, स्टूडेंट जो है वो ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी वॉशिंग हो रही है, इनएफिशिएंट वाटरिंग हो रही है. हो सकता है शायद गार्डनर जो है वो सही से पानी ना दे रहा हो या ज्यादा पानी दे रहा हो. ठीक है. तो ये सारी चीजें होंगी. स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास डेटा शीट भी बनाकर देगा हमें चैट जीपीटी, वो हम बनवाएंगे भी सारी चीजें इससे ही. देन टीम रोल्स डिसाइड होंगे. ठीक है. फिर स्कूल के लिए प्रोजेक्ट पूरा डिजाइन होगा कि स्कूल का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम्स हमने क्या क्या की, हमारे एविडेंस क्या क्या है, हमने डिस्कवर क्या क्या किया. पूरा एक प्रोजेक्ट सोल्यूशन बनेगा. अच्छा, और की चैलेंज ये होगा कि स्टूडेंट से पानी बचाओ मुहिम के पोस्टर्स बना के नहीं लेकर आएंगे बल्कि स्टूडेंट्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करना होगा एविडेंस के साथ. और फिर हमने कनेक्शंस किया अपने एसडीजीज के साथ जैसे कि हमने एसडीजी 6 पे डिस्कशन भी किया था. ठीक है. एसडीजी 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शंस और एसडीजी 13 है क्लाइमेट एक्शन. और क्योंकि हम क्वालिटी एजुकेशन पे बात करें तो एसडीजी 4 पर भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. और फिर 20 मार्क्स का इन्होंने जो है पूरा एक सैंपल असेसमेंट भी दिया है और ये सारी चीजें दी हैं. अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास जो है सजेस्टेड पीबीएल फ्लो और इस तरह का. मैं इस पे एक प्रॉम्प्ट और डालूंगा और वो प्रॉम्प्ट होगी, 2 मिनट में कॉपी पेस्ट करते हैं. प्रॉब्लम अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और इसको बोलेंगे कि आप जो है क्या करो, इसी सेम आप मुझे जो है सेम प्रोजेक्ट को आप इंटीग्रेट करो साइंस में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, आईसीटी में. अच्छा, इसके अलावा मैं क्या करता हूं, मैं इसमें अपने कॉन्टेक्स्ट भी डालता हूं. इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. इसके अलावा सजेशंस दें कोई और सा सब्जेक्ट अगर मैं मिस कर रहा हूं कोई. उर्दू, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, आईसीटीज, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड उर्दू, में भी सिंधी.
ठीक है। अब मैंने इसको प्रॉब्लम नंबर 2 दी और मैंने इसको बोला कि अब आप इन इन सब्जेक्ट्स के हवाले से क्या करें, आप कर दें, ठीक है। अब इसने बोल दिया कि हम वन प्रॉब्लम रखेंगे लेकिन कंट्रीब्यूट करेगा हर हर सब्जेक्ट। तो अब ये हमें सब्जेक्ट्स वाइज भी हमें आइडियाज दे रहा है। साइंस में हमें बता रहा है इन्वेस्टिगेट वाई वाटर इज बीइंग वेस्टेड, ठीक है, एविडेंस बेस कॉस्ट इफेक्ट शीट, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें देनी पड़ेंगी। मैथमेटिक्स के अंदर क्वांटिटेटिव एविडेंस हमें कैलकुलेट करना होगा, मैथ्स में हम क्वांटिफाई करेंगे ऑब्वियसली कितना पानी जाया हो रहा है, कितनी चीजें जाया हो रही हैं। इंग्लिश में हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स राइट अ परसुएसिव प्रपोजल, प्रपोजल लिखने के लिए ऑब्वियसली हम इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। तो आउटपुट जो है वो वाटर सेविंग प्रपोजल है, मगर जो है स्टूडेंट्स जो है वो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट सीखेंगे इस पे, ठीक है। अच्छा, स्प्रेडशीट यूज करेंगे मैथमेटिक्स डेटा के लिए अगर हम एक्सेल इस्तेमाल करवा रहे हैं, ठीक है। डिजिटल डैशबोर्ड्स बनवा सकते हैं हम, और डैशबोर्ड्स जो है वो हम क्लॉड और एआई की मदद से भी बनवा सकते हैं, हम पोस्टर्स बनवा सकते हैं इसमें डिजिटली। तो हम बहुत सारी चीजों में आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज पे भी देखें बात की जा रही है, इसराफ के ऊपर बात की जा रही है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर बात की जा रही है, रिलीजियस रैशनाले हमें डालने की बात की जा रही है। पाकिस्तान स्टडीज में हमें बताया जा रहा है कि क्यों पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। लार्जर नेशनल सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस पे बात की जा सकती है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंदर जो है वो क्या है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट प्लेस टैप रिमाइंडर्स, वाटर मॉनिटर साइंस, अब विजुअल वाटर सेविंग स्टेशंस, ठीक है, अ प्रोटोटाइप ऑफ देयर प्रपोज सॉल्यूशंस। अब इसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी हमारा इन्वॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स में हमारे पास क्या है कि अवेयरनेस और मैसेज स्क्रिप्ट्स हम बना सकते हैं उर्दू में, और हम उर्दू में ऐसे भी लिख सकते हैं, हम उर्दू में डिबेट्स भी कंडक्ट कर सकते हैं कि पूरा दिन बन सकता है बेसिकली। और ये खास तौर पे जो वाटर सेविंग डेज होते हैं या जो इस तरह की डेज होते हैं उन पर हम कर सकते हैं। हमारी को करिकुलर की को करिकुलर और एसडीजीज और सस्टेनेबिलिटीज पर भी बात हो जाएगी। अच्छा, सिंधी में क्या है, स्टूडेंट्स क्रिएट द सेम मैसेज कोर मैसेजेस इन सिंधी फॉर लोकल कम्युनिटी, सिंधी वर्जन्स पर हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर काम किया जा सकता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि हम जो है इस तरीके की चीज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं लास्ट में क्या करूंगा, बहुत एक सिंपल सी चीज करूंगा ताकि जो है ना प्रोजेक्ट जो है वो आसानी से हमारे पास आ जाए। मैं इसको बोलूंगा मेक अ डॉक फाइल of this project with all the details I have collected from you, from you, so that so that from you so that I can review the file and set it for my own school's context। अब ये मैंने लास्ट इसको प्रॉम्प्ट दिया और मैंने इसको बोला कि भाई अब आप मुझे क्या कर दो, एक डॉक्यूमेंट फाइल आप सेंड कर दो, ये एनालाइज करेगा, डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। आई थिंक फॉर दिस पर्पस मैं वैसे क्लॉड यूज करता हूँ, ज्यादा बेहतर क्लॉड है इस्तेमाल करना। बट अगर आप क्लॉड नहीं भी इस्तेमाल करें तो भी आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन जब तक ये आता है हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर वापस चले जाएंगे और स्लाइड्स पर वापस जाकर हम थोड़ा सा डिस्कशन अपना जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और कुछ बातें हम इस पे कर कर अपने सेशन को अब एंड की तरफ लेके जाएंगे। स्कूल्स में वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई है लेकिन हमारी बात नहीं हुई एनर्जी के ऊपर, वेस्ट के ऊपर और फूड के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड वेस्ट पर। आई वुड लाइक टू आस्क कि हमारे स्कूल में क्या खाना जाया होता है, फूड वेस्ट हम देखते हैं कहीं पर कैंटीन्स में, लंच ब्रेक्स के दौरान वेस्टेज हमारे फूड की है हमारे स्कूल्स में, या नहीं होती हमारे स्कूल में वेस्टेजेस, फूड वेस्टेजेस नहीं होती। इफ एनीबडी वुड लाइक टू शेयर देयर फीडबैक्स एंड कमेंट। हमारे पास कमेंट आ गया है और होती है फिर, यकीनन होती है, बिल्कुल होती है। तो हम क्या वेस्ट कर रहे हैं, इस स्कूल्स में कितनी चीजें वेस्ट कर रहे होते हैं खाने की। तो इसका कोई इनोवेटिव आइडिया किसी के पास हो कि यार अगर फूड वेस्ट हो रहा है तो वो हम किस तरह से हम कर सकते हैं। कोई रिसोर्स इस्तेमाल नहीं करना है हमने, हमने कोई रिसोर्स इस्तेमाल नहीं करना, और हमने सिर्फ जो है अपने फूड वेस्ट को वेस्टेज से बचाना है। अच्छा, अब आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ गया चैट जीपीटी से जो जनरेट हुआ था, और जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे 4 से 5 मिनट में हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट का पूरा स्नैपशॉट आ गया है। इसको अब हमने सिंपली क्या करना है, अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए रिव्यू करना है,
टीम रोल्स डिसाइड करने हैं, चीजें करनी है, और उसके बाद जब हम पूरा प्रोजेक्ट एक दफा फाइनलाइज कर लें, देन हम ये प्रपोजल अपने स्कूल के ओनर को, एकेडमिक हेड को और चीजों को दे सकते हैं कि भाई ये एक प्रोजेक्ट है जो हमने डिजाइन किया, एक्टिविटी डिजाइन की, और इस एक्टिविटी को हम अपने स्कूल में परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने वाटर से रिलेटेड की है, आप इसी को कैंटीन से रिलेट कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं, और अपनी एनर्जी से रिलेट भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने वाटर ऑडिट किया, इसी तरीके से हम एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं। जिस तरह हमने वाटर ऑडिट किया, इस तरीके से हम अपना सॉलिड वेस्ट ऑडिट भी कर सकते हैं, कैंपस ऑडिट भी कर सकते हैं, ग्रीन स्पेसेस पे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट पे भी कर सकते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट किस तरह मतलब कि हम फ्यूल किस तरह बचा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर किया जा सकता है। तो फूड वेस्टेज के ऊपर बात कर रहे थे। फूड वेस्टेज पर बात करने का एक बड़ा अच्छा यूनिक आइडिया जो है वो कहीं पर मुझे मिला था, और उसमें ये था कि स्टूडेंट्स को हम क्लासरूम्स में या कैंटीन्स में ये प्रमोट करते हैं कि आपने जितना खाना है, सबसे पहले तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने जितना खाना है आप उतना खाओ। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्सीज है, तो आपने एक स्कूल में एक एक्टिविटी बनानी है कि एक 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 जगह है, एक काउंटर है, जिस काउंटर के ऊपर जो है वो प्लेट्स रखी हैं या कोई आपने चीजें रखी हुई हैं। एंड इफ स्टूडेंट थिंक्स कि यार ये मेरे पास एक्सीस है, या इफ एनी टीचर थिंक्स कि यार ये मेरे पास एक्सीस है, दे कैन लीव दैट पोर्शन विद बिफोर ईटिंग। आपने वो वहां पे रख दिया। रखने के बाद एनीबडी फ्रॉम द स्टूडेंट्स और टीचर्स और हेल्पिंग स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ कैन टेक फ्रॉम दैट। तो दिस इज अ वेरी सिंपल बेसिक एक्टिविटी, जिसमें आपने फूड भी वेस्ट होने से बचाया, और अगर किसी ने यूज करना तो वो इस्तेमाल हो गया। अगर वो इस्तेमाल नहीं होता तो बाय द एंड ऑफ द डे आपने, या बाय द एंड ऑफ द ब्रेक आपने उस सबको एक जगह पे कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद बहुत सारे गरीबों को दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपका फूड वेस्ट होने से भी बच रहा है, और आप एक एथिकली एक स्टूडेंट को जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के तौर पर भी आप उसको जो है वो उसको समझा रहे हैं कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल वे में जो है वो ईट कर सकता है। इसके अलावा एक्टिविटी हो सकती है। अच्छा, इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। It's fine, Sarvit. It's fine. If you want to leave, you can leave because we are going to end the session in 5 minutes only. Just we are going to wrap it up now. You can leave it now. अब हम अपने सेशंस को, अच्छा, इसी तरीके से हम वेस्टेज पर भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, एनर्जी के ऊपर भी ऑडिट हो सकता है, और बहुत सारी और भी डिफरेंट चीजों पर हो सकता है। आई नो इट्स अ टाइम शॉर्टेज ऑल्सो, it's a holiday, so I would like to end my session here. Meanwhile, if anybody wants to connect with me, they can do so by joining my YouTube or Facebook page. We often do offer free webinars, premium workshops, certifications, school trainings, corporate trainings, leadership programs, and future ready education summits, on and off, sometimes free of cost, sometimes paid. If anybody wants to join us, they can join us. And today's exit ticket is just a one simple exit ticket. I am copy pasting the link of my Facebook page. You just have to go to the review section and write a feedback about today's session. That's it. This is the only exit ticket I have today. आपने सिर्फ जाकर रिव्यू सेक्शन के ऊपर आज के सेशन का नाम लिख करके टीचिंग फॉर अ बेटर प्लैनेट आपने अटेंड किया है, और आज आपने उसमें क्या सीखा उसके बारे में कोई भी अच्छा या बुरा रिव्यू या फीडबैक जो भी आपका है, वो आप उस पर लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आप उसको जो है क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने पर आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट इज नथिंग फॉर मी टू गिव। द ओनली थिंग दैट मैटर्स हियर इज योर लर्निंग। एंड आई होप कि आपने इससे आज के सेशन से कुछ सीखा होगा। अगर आपने आज के सेशन से कुछ जरा सा भी सीखा है, तो वो मेरे लिए जो है वो क्या है, लर्निंग है, कि आप लोगों ने जो है आज आज कुछ ना कुछ इस चीज से सीख लिया है। दैट्स द बेसिक पर्पस ऑफ द सेशन। अगर आप फेसबुक यूज नहीं करते, तो आप अपना फीडबैक जो है वो आप जो है वो यूट्यूब वीडियो पे जो आज अपलोड होगी उस पर जाकर आप जो है कमेंट कर दें। आई विल काउंट दैट एज एन एग्जिट टिकट एज वेल। अगर कोई फेसबुक यूज नहीं करता, दे कैन यूज दैट फीडबैक ऑन द यूट्यूब लिंक। आप यूट्यूब लिंक आपको इंशाल्लाह 8-9 बजे तक मिल जाएगा। आपने उसके ऊपर जाकर करना है। कोई 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 हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सर्टिफिकेट्स एनीवेज आपको जो है वो पीडीएफ पर मिलेंगे, बट इट्स जस्ट अ फीडबैक फॉर मी टू improve myself and to get the reach on the Facebook and YouTube as well. These are the sessions that has been going to be conducted very soon, inshallah. One such program I would recommend if anybody wants to attend a one-day program. This is a triad workshop in which we're going to discuss gamification, flipped classrooms, and project-based learnings. And there is this another program called Certified AI Educator Program, which is a 3-week extensive program with 6 hours of learning.
online and 6 hours of a self-paced learning course. This is going to make you a certified AI educator, not only being able to use AI, Claude, Gemini, or ChatGPT, but also will make you able to earn money through education, websites, and other tools so that you can make some sort of money part time. So this is another very great certified AI educator program. Their costs are mentioned. And if you want to join another free webinar that is going to be conducted on 29th August, leading schools that inspire, and that has a different theme. Inshallah, उस पर भी हम discuss करेंगे. Inshallah, if we are alive, we are going to meet somewhere someday. Inshallah, soon. Thank you so much for joining in. A very happy Independence Day, a very good holiday ahead, इंशाल्लाह, क्योंकि अब सैटरडे संडे आगे आप लोगों की छुट्टियां होंगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कभी मुलाकात होगी. Thank you so much for joining in. If anybody wants to leave, they can leave, and I have taken up the attendance. And exit ticket will be counted as your feedback on either YouTube video or a Facebook page review. Just send me the screenshot. I will send the certificates by Monday, inshallah. Thank you so much for joining in. Thank you so much for giving out your time. Thank you so much, everyone. Inshallah, फिर मुलाकात होगी. Jazakallah everyone for joining in. Allah Hafiz. Thank you.